وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 19 روپے 95 پیسے اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 19 روپے 90 پیسے اضافے کا اعلان کر دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ قومی مفاد میں پیٹرول اور ڈیزل پر 20 روپے کا اضافہ کیا ہے۔ خواہش تھی کہ عوام کو ریلیف دیں مگر IMF معاہدے کے پابند ہیں۔ گزشتہ 15 دن میں خام تیل کی عالمی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ پچھلی حکومت کی طرح جاتے جاتے معیشت کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے۔ وزیر اعظم نے ایک بار پھر بھارت کو مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ اپنے خطاب میں بھارت کا نام لیے بغیر وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اپنے ہمسائے سے بات کرنے کے لیے بھی تیار ہے مگر اس شرط پر کہ ہمسایہ بات کرنے پر سنجیدہ ہو اور سنجیدہ معاملات کو میز پر بیٹھ کر حل کرے، کیونکہ اب جنگ کوئی آپشن نہیں ہے۔ خدا نخواستہ کوئی جوہری تصادم ہوا تو یہ بتانے کے لیے کوئی نہیں بچے گا کہ ہم کون تھے۔ پاکستان امریکہ سے بھی باہمی اعتماد اور احترام کی بنیاد پر بہترین تعلقات چاہتا ہے، ایسا تعلق نہیں جس میں دونوں ملک ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں۔ مردم شماری 2023 کے نتائج کی منظوری کے لیے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس طلب کیے جانے کا امکان۔ ایڈیٹر انویسٹیگیشن جنگ اور دی نیوز انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق محکمہ شماریات کو 2023 کی مردم شماری کے نتائج کی منظوری کے لیے CCI سے رجوع کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کونسل کی مردم شماری کے نتائج کی منظوری کی صورت میں انتخابات میں تاخیر کا بھی امکان ہے۔ متعلقہ حکام کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل مردم شماری 2023 مکمل ہو چکی ہے۔ کونسل کی جانب سے منظوری کے بعد نتائج آئین کے مطابق شائع کر دیے جائیں گے۔ آئندہ عام انتخابات تازہ ترین مردم شماری کی بنیاد پر ہوں گے۔ ذرائع CCI کے مطابق اجلاس 2 اگست کو طلب کیے جانے کا امکان ہے۔ سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے لیے فل کورٹ بنے گا یا نہیں؟ سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا، فیصلہ کل سنائے گی۔ سپریم کورٹ بار، چیئرمین PTI اعتزاز احسن اور دیگر درخواست گزاروں کے وکلاء کی فل کورٹ بنانے کی مخالفت، 2 درخواست گزاروں کی فل کورٹ بنانے کی استدعا۔ اٹارنی جنرل نے 9 مئی کے واقعات کے 102 ملزمان کی فہرست اور ان پر الزامات کی تفصیل سپریم کورٹ میں پیش کر دی۔ چیف جسٹس نے کہا کوئی آزاد ادارہ ہونا چاہیے جو جائزہ لے کہ گرفتاریاں ٹھوس وجوہات کی بنیاد پر کی گئی ہیں۔ جسٹس مظاہر نقوی نے کہا ان 102 افراد کے علاوہ باقی افراد کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ پک اینڈ چوز کی قانون میں اجازت نہیں ہے۔ اسلام آباد میں کمسن ملازمہ بچی رضوانہ پر تشدد کیس میں نامزد ملزمہ نے ضمانت قبل از گرفتاری حاصل کر لی۔ ایڈیشنل سیشن جج ڈاکٹر عابدہ سجاد نے درخواست پر سماعت کی۔ سول جج عاصم سجاد کی اہلیہ کی 7 اگست تک عبوری ضمانت منظور کی گئی۔ ملزمہ کی 1 لاکھ روپے کے مچھلکوں کے عوض عبوری ضمانت منظور کی گئی۔ پیشی کے بعد میڈیا کے نمائندوں نے ملزمہ سے سوالات کرنے کی کوشش کی لیکن ملزمہ نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ اسلام آباد میں سول جج کی اہلیہ کا گھریلو ملازمہ بچی رضوانہ پر تشدد۔ لاہور کے جنرل اسپتال میں زیر علاج رضوانہ بدستور آکسیجن پر ہے، اگلے 48 گھنٹے اہم قرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا ٹیلی فون۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے بچی رضوانہ کے کیس کے حوالے سے وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ کہا بچی رضوانہ کے والدین نے ملاقات میں انصاف اور مدد کی اپیل کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مظلوم خاندان کی ہر ممکن مدد اور فوری انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کا کمسن گھریلو ملازمہ رضوانہ پر تشدد کا نوٹس، کل اجلاس طلب۔ ملازمہ بچی رضوانہ کے لیے قائم کیے گئے میڈیکل بورڈ کے سربراہ پروفیسر جودت سلیم کا کہنا ہے رضوانہ کے دونوں بازوؤں کو پلاسٹر کر دیا گیا ہے۔ رضوانہ کے سر اور کمر کے زخم مسلسل پٹیاں کرنے سے بھر رہے ہیں۔ رضوانہ نے آنکھیں کھولنا شروع کی ہیں، اس کی آنکھوں میں خون جمع ہوا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں توشہ کیس کی سماعت۔ چیئرمین PTI کا 35 سوالات پر مبنی 342 کا بیان عدالت میں ریکارڈ کر لیا۔ چیئرمین PTI نے کہا کہ شکایت کنندہ کے بیانات نہیں سنے، یہ ان کی موجودگی میں ریکارڈ نہیں ہوئے، ان کی موجودگی میں فرد جرم نہ عائد کی گئی اور نہ فرد جرم پڑھ کر سنائی گئی۔ چیئرمین PTI نے بیان میں مزید کہا کہ گواہان کو آخری لمحے پر ان کے خلاف بطور گواہ جھوٹا بیان دینے کے لیے لایا گیا، اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ گواہان ان کے خلاف جھوٹا بیان دیں۔ چیئرمین PTI نے کہا کہ 14 ماہ سے PDM انہیں انتخابات سے باہر کرنا چاہتی ہے، شکایت کنندہ میرے خلاف کوئی بھی ثبوت سامنے لانے پر ناکام رہے۔ سپریم کورٹ میں چیئرمین PTI کی توشہ کیس سے متعلق اپیل سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کل سماعت کرے گا۔ جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی بینچ میں شامل۔ چیئرمین PTI نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ گزشتہ روز سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ JIT نے 9 مئی کو جناح ہاؤس پر حملہ اور جلاؤ گھیراؤ کے معاملے پر چیئرمین PTI کو جمعے کو طلب کر لیا۔ چیئرمین PTI کو تمام نامزد مقدمات میں طلب کیا گیا ہے۔ چیئرمین PTI کو JIT نے 4تھی مرتبہ طلب کیا ہے۔ پولیس کے مطابق چیئرمین PTI صرف 1 مرتبہ اب تک پیش ہوئے۔ JIT کے ممبران کو دھمکانے پر چیئرمین PTI کے خلاف تھانے میں شکایت درج ہے۔
बाजोड़ धमाके के तीसरे रोज भी खार बाजार बंद और सोग की फजा। जिला भर में सिक्योरिटी सख्त। ताजे बरादरी और वकला का 3 रोजा सोग और अदालती उमूर का बॉयकॉट। DHO डॉक्टर फैसल के मुताबिक 44 मैयतें वर्षा के हवाले की गई हैं, जबकि 3 मैयतें अब भी तहसील हेडक्वार्टर खार के अस्पताल में शनाख्त के लिए रखी हुई हैं। इतवार को जमीयत उलमा इस्लाम फे के वर्कर्स कन्वेंशन में बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया था। बाजोड़ धमाके में जाँ बहक होने वाले 5 बच्चों में 7 बहनों का इकलौता बड़ा भाई अबूजर भी था। 7वीं जमात का तालिब इल्म 12 साल अबूजर मुआशी तंगदस्ती दूर करने के लिए फारिग वक्त में चिप्स फरोख्त करता था। गर्मियों की छुट्टियां थीं। अबूजर वर्कर्स कन्वेंशन में चिप्स बेचने ही गया था कि धमाका हो गया। अबूजर के वालिद जावेद खान का कहना है कि जब धमाका हुआ और अबूजर कहीं नहीं मिला तो उसे अस्पताल में ढूंढा, फिर मुर्दा खाने में कपड़ों से अबूजर की पहचान हुई। एक बच्चे पर चादर पड़ी थी, हटाकर देखा तो चेहरा नाकाबिल शनाख्त था। न उसके पैरों में कुछ था, न हाथ में कुछ था, दूसरी कोई निशानी नहीं थी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की बाजोड़ में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। दहशतगर्दों, उनके पुश्त पनाहों और सहूलतकारों को कटहरे में लाने का मुतालबा। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए दीगर ममालिक पर भी पाकिस्तान से ताउन पर जोर। कोयटा के नवाही इलाके नवाकले में इंसदाद पोलियो टीम पर फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की साइफर इंक्वायरी कलअदम करार देने की दरखास्त पर एतराज़ात दूर कर दिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद की रजिस्ट्रार ऑफिस को दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने आज PTI की दरखास्त पर एतराज़ात दूर करने की इस्तदा पर समाअत की। चेयरमैन PTI के वकील लतीफ़ खोसा ने मौक़िफ़ अपनाया कि साइफर का मामला उठाया ही नहीं जा सकता। वज़ीर आज़म और काबीना के फैसलों को आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना होता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, क्या अब आप FIA की इंक्वायरी को चैलेंज कर रहे हैं? लतीफ़ खोसा बोले, जी बिल्कुल। चेयरमैन PTI जिस दिन FIA में पेश हुए उसी दिन नया नोटिस भेजा गया। इससे ज्यादा बदनीयती क्या हो सकती है? तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी ने मुआफीनामा इलेक्शन कमीशन को जमा करा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फवाद चौधरी के मुआफीनामे पर एतराज़। कहा, मुआफीनामे की पहली 3 लाइन्स में शराइत डाली गई हैं। फवाद चौधरी दुरुस्त तरीके से मुआफ़ी लिखते या फिर शो कॉज नोटिस का जवाब देते। फवाद चौधरी के वकील बोले कि ये तकनीकी मामलात हैं, आप मुआफ़ी को कबूल करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया कि फवाद चौधरी का मुआफीनामा देखकर अगली समाअत पर फैसला देंगे। केस की समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। मादनियात के शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग के लिए पाकिस्तान मिनरल समिट का आगाज। इफ्तिताही सेशन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा, बैरूनी सरमायाकारों को खुशामदीद कहेंगे। मुल्क में छोटे बड़े इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाएंगे। मादनियात के इनकलाब से रोजगार के मौके पैदा होंगे। समिट में सऊदी अरब के नायब वज़ीर कानकनी खालिद साले अल मुज़फ़्फ़र, गैर मुल्की मंदूबीन, माहिरीन मादनियात और सरमायाकार शरीक। सिंध में 2 माह की छुट्टियों के बाद स्कूल और कॉलेजेस आज दोबारा खुल गए। 2 माह खूब खेल कूद किया, अब फिर से सुबह सवेरे जागने और बस्ता किताबें लिए स्कूल जाने की रूटीन शुरू। पहले दिन कोई पुरजोश तो कोई आंखें मसलता स्कूल पहुंचा। किताबों की अदम दस्तयाबी पर वालिदैन और तलबा परेशानी का शिकार। दरसी कुतुब के महंगे होने का भी शिकवा। बच्चे भी परेशान, हम भी परेशान। 9 और मैट्रिक की 9 की तो कुछ मिली, मैट्रिक की तो बिल्कुल ही नहीं मिल रही। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो सब शॉर्ट हुई हुई है। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के बिल की हर शेख कौमा फुल स्टॉप। PTI दौर में बना था। वफाकी वज़ीर कानून की आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, हमने फैसला किया है कि ये बिल पेश नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि ऐसी कानून साजी उजलत में ना करें। बोले, बेहतर होगा कि मरदमशुमारी पर मुश्तरका मफादात काउंसिल में बात करके आईनी हल ढूंढें। जो ज्यादतियां नवाज शरीफ और नून लीग के साथ हुई, उनका अजाला इलेक्शन से कबल होना चाहिए। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, निगरां वज़ीर आज़म के लिए मुत्तफ़िक का नाम जल्द सामने आएगा। तमाम मामलात में इत्तेहादियों में मुशावरत होती है।
निगरान वज़ीर आला पंजाब में लाहौर में नज़रिया पाकिस्तान रोड पर यू टर्न का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने 15 दिन में नज़रिया पाकिस्तान रोड का यू टर्न मुकम्मल करने पर DGLDA और उनकी टीम की तारीफ करते हुए कहा कि नज़रिया पाकिस्तान रोड पर मजीद 2 यू टर्न बनाए जाएंगे। लाहौर, सियालकोट, मरी, गलियात, एबटाबाद समेत सिंध के साहिली पट्टी पर आज तेज़ बारिश की पेशगोई। सिंध के शहर दादू में तेज़ बारिश, गोरख हिल स्टेशन पर दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। बारिशों के बायस नदी नालों में भी तोग़यानी। रहीम यार खान के करीब कच्चा चौहान का बंद टूट गया, मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब आ गए। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत नकले मकानी शुरू कर दी। बंद टूटने के बायस रहीम यार खान और रुझान का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। दादू में तेज़ बारिश के बायस मुतअद्दिद राब्ता सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। सैलाब से मुतासर इलाकों में नकलो हरकत के लिए कश्तियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। सखर बैराज में 24 घंटों के दौरान 10,000 क्यूसेक का इजाफा। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल मामूल पर आने लगी। तर्जुमान PGMA के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 7 अगस्त तक मुतवक्के बारिशों की शिद्दत में कमी आने के इम्कानात हैं। ज़िला बदीन के स्कूल्स में तालीमी सरगर्मियाँ शुरू हो गईं, लेकिन स्कूल से बारिश के पानी की निकासी अब तक ना हो सकी। स्कूल में घुटनों पानी जमा होने के बायस तलबा और तालिबात को परेशानी का सामना। खैरपुर में सैलाब से मुतासरा तहसील गवर्नमेंट हाई स्कूल खस्ता हाल इमारत के बायस 1 साल बाद भी नहीं खुल सका। बच्चे स्कूल खुलने के मुंतज़िर। बारिशों के बाद गर्मी बढ़ते ही इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में पेट के अमराज में इजाफा। असिस्टेंट प्रोफेसर गैस्ट्रो के मुताबिक आलूदा पानी के इस्तेमाल और बासी अशा के इस्तेमाल की वजह से पेट के अमराज में इजाफा हो रहा है। मरीजों को इंजेक्शन और ड्रिप के जरिए एंटीबायोटिक्स अद्वियात देकर अमराज कंट्रोल किए जा रहे हैं। कौमी इदारा बराए सेहत इस्लामाबाद का कहना है शहर में अब तक हैजे का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। मारूफ शायर फैज़ अहमद फैज़ से मंसूब फैज़ घर पर भी महंगाई का असर। किराया और बिजली का बिल क़ुव्वत बर्दाश्त से बाहर हो गए। फैज़ घर को बंद कर रहे हैं। सेक्रेटरी फैज़ फाउंडेशन ट्रस्ट अदील हाशमी का ऐलान, कहा कि फैज़ फाउंडेशन ट्रस्ट ने फैज़ घर को ऑनलाइन करने का फैसला किया है। भारतीय रियासत हरियाणा में हिंदुओं के जुलूस पर पथराव के बाद झड़पें। इंतहा पसंदों ने इल्ज़ाम मुसलमानों पर धरकर कत्लो गारत का नया सिलसिला शुरू कर दिया। गुरुग्राम में इमाम मस्जिद को कत्ल कर दिया, मस्जिद को भी आग लगा दी। जिला नूह में विश्व हिंदू परिषद के जुलूस से शुरू होने वाला फसाद का सिलसिला कई इलाकों तक फैल गया। गुड़गांव में 3 अफराद कत्ल कर दिए गए। हिंदू इंतहा पसंदों ने मुतअद्दिद गाड़ियों को आग लगा दी, दुकानों में तोड़ फोड़। सूरत हाल काबू करने के लिए इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, विफाक से इजाफी फोर्स तलब। रवा माह में 2 सुपर मून होंगे। पहला नज़ारा आज और दूसरा 30 अगस्त को होगा। माहिर फल्कियात कहते हैं चांद जमीन के इंतहाई करीब, मामूल से 14% बड़ा और 30% रोशन नजर आएगा। एक माह में 2 बार फुल मून हो तो ब्लू मून का नाम दिया जाता है। और बरतानवी शहजादे विलियम लंदन में बर्गर बेचने लगे। शहजादा को बर्गर बेचता देखकर स्टॉल पर आए शहरी दंग रह गए। शहजादा विलियम को 2022 में इनाम हासिल करने वाली मशहूर यूट्यूब चैनल की टीम ने अर्थ शॉट बर्गर बनाने, पकाने और तकसीम करने के लिए मदऊ किया था। इसका मकसद माहौलियाती आलूदगी और खालिस ग़िज़ाओं के रुझान को फ़रोग़ देना था।